नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई's नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है रोल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, हु इज ए सीनियर रेजिडेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, and to my other left is Dr. S.L. Yadav, who is an assistant professor in physical medicine and rehabilitation. ये दोनों एक्सपर्ट हमें आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिगार्डिंग फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम सर। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, जिसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सर, जैसे इस टॉपिक में जो टर्म्स यूज करी गई हैं फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, एग्जैक्टली व्हाट द टर्म्स मींस। Good afternoon. Today we are going to discuss about physical medicine and rehabilitation role in the rehabilitation of various diseases. Before I come on the topic, I would like to discuss that what physical medicine rehabilitation is. Physical medicine rehabilitation is the branch of medicine which emphasize the prevention, diagnosis and treatment of disorders which they are particularly related to nerves, muscles and bones, and that may produce ultimately temporary or permanent impairment. And thus the physical medicine rehabilitation provides integrated care in the treatment of all disease conditions which may be either related to brain, musculoskeletal system, or they might be occurring because of traumatic brain injury or other problems like low back pain, so and so forth. Basically, in physical medicine rehabilitation, on daily basis we encounter with so many clinical conditions. Patient who they report to us with the back problems, with the neck problems, and the bone mineral density problems, which is called osteoporosis, and they have got certain other congenital problems or maybe age-old related problems and cardiac diseases, or maybe the stroke problems. They report to us every day, and in our physiatry setup we need to evaluate them, so that ultimate goal of physiatry or physical medicine rehabilitation is just to functionally restore them so that they can be good member and can be settled back to the community, productive member in the community, so that there should be no more burden on the society. So that's the ultimately aim of physiatry in the common practice. And if you look at the rehabilitation aspect of any medicine branch, this comes in the last basically, and the first two branches are comprising of curative medicine. Curative medicine means medicine and the surgery where disease can be cured, and if anything is left over then it is handed over to the rehabilitation experts. And other component of modern medicine is preventive medicine, that counts the preventive and social medicine, and which mainly focuses on the prevention of the disease not to happen. The best outcome of healthcare depends on the extent of interaction amongst these three components. So if we really go for an holistic approach in the treatment or managing of patients, so we have to club each and every modern medicine branch together, then only the outcome would be better. Because any disease, like I'll give an example, in CVA there is a paralysis half of the body. The neurophysician look at in the beginning, and once the disease part is settled, then they are being referred to the rehabilitation expert. And the rehabilitation expert decide that what intervention the patient required, and after the appropriate intervention, what are other component of rehabilitation like psychosocial, economical, physical,
and all domain need to be assessed, and then they completely get, those being taken care of and appropriate treatment, and then finally they are sent back to the community as a productive member. So that should be the focus of the rehabilitation physician. So that means rehabilitation plays a very important role. जैसे आपने एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर कोई पेशेंट आता है अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, तो उसको मतलब डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद जो फाइनली मतलब he can work independently into the community and can get back there और बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सके, तो रिहैबिलिटेशन का उसमें काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. Yeah, exactly. रिहैबिलिटेशन का लिटरली मीनिंग है पुनर्वास. जी. WHO definition states that health is health has several components, including vocational rehabilitation, and anybody who develops disabilities like spinal cord injury, it is very difficult to get back his job. So in rehabilitation, it is told how that person with disability can work. So this is called rehab, and every other psychosocial issues are well taken care of. As sir told, the best outcome of healthcare depends on the extent of interaction among these three components, like preventive medicine, curative medicine, and rehabilitation medicine. I would like to give one example. For example, if somebody is giving aspirin 75 milligram for prophylaxis of atherosclerosis and coronary artery disease, जी. so it is preventive for myocardial infarction. And if myocardial infarction occurs, then the treatment is the curative one or angioplasty. After this event, अगर दोबारा से myocardial infarction ना हो, उसके लिए there are several remedial measures should be taken. Like patient lifestyle has to be changed. जी. Patient stress level has to be changed. Smoking habit should be curtailed. Proper dietary advice should be given, and how to increase his cardiovascular endurance. So these are the part of rehabilitation treatment. तो सर जैसे आपने बताया कि जैसे SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह भी हो जाती है, उसके बाद मतलब डिपेंड करता है कि कंडीशन के ऊपर के बाद में जो उसका लाइफ स्टाइल होगा किस तरीके से चेंज होगा, और रिहैबिलिटेशन उसमें कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, इसमें कुछ केसेज होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं. अधिकतर केस जो देखे गए कंप्लीट इंजरी होती है उनको. तो रिकवरी उसी पे डिपेंड करती है कि किस लेवल की इंजरी है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है. उसमें हम फिर डोमेन देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन हैं जो अफेक्टेड हैं. जैसे मेन कंपोनेंट देखिए उनका कि मोबिलिटी अफेक्टेड है, सेंसेशन लॉस है, तो उनको बार बार चांसेस हैं कि दे माइट गेट प्रेशर सोर्स. सो हाउ टू एजुकेट ऑन दैट इशू. एंड इफ दे हैव बीन वर्किंग एन एक्टिव मेंबर, then probably they lost their job also, because some people they require to do job while they are standing. So they lost job or wages, then we have to counsel them vocationally, and then vocational input has to be evaluated, and at the same time with the vocational guidance, we need to contact them to their employer, because as per the rule, the PWD Act also, they cannot lose, they are not supposed to lose their job. So we need to talk to their employer so that they can, if the guy has lost job, he cannot stand, but at least some alternative job has to work out, so one does not lose the job. And then उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, बाउल इनकॉन्टिनेंस होती है, तो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको कैसे इवेल्युएट कराया जाए जिससे कि वो अपना अवॉइड कर सकें. और जो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि बार बार उनको टॉयलेट अवॉइड करेंगे, स्मेल आएगा, केयर गिवर भी उनसे थोड़े दिनों बाद भागना शुरू हो जाते हैं कि एक बार पता चल जाता है कि रिकवरी नहीं आएगी. तो वो सारे एस्पेक्ट भी एक रिहेबिलिटेशन के द्वारा एड्रेस किए जा सकते हैं. So the final aim of rehabilitation is to restore the function and reintegrate them into the community. So the concern of rehabilitation expert always goes beyond the curative part. It's not that it's a fever like which has been aspirin is given or paracetamol is given and is treated and it's okay. In the rehabilitation, patient more or less become lifelong friend to the doctor.
to the rehabilitation expert, whosoever it may be, or maybe to the team members. That depends. And as and when we talk about the rehabilitation, we need to train them for their full participation, both in terms of their activities of daily living and as well as to meet out the social obligations. And that can be helped to make their life worthwhile and productive. Because everybody, whosoever is disabled, in society they never be seen with the prestige. They are always being looked after, बेचारा है, लंगड़ा है, इस तरह की काफी भ्रांतियां होती हैं. अगर हम उन लोगों को उनसे ऊपर उठाना है तो हमको अच्छे से रिहेबिलिटेशन करना है, so that those things should not, they should not feel deprived, they should not be underprivileged, और बेचारा वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया जाए. इसलिए उनको अच्छे से रिहेबिलिटेशन हो जिससे वो कम्युनिटी में वापस से दोबारा जा सकें. ये बहुत जरूरी है उनके लिए. तो सर, जैसे आपने बताया कि एटीट्यूड है जो लोगों का, जैसे आपने बताया कि टू मीट द सोशल ऑब्लिगेशंस, और जैसे कईयों का एटीट्यूड होता है सिंपैथिक एटीट्यूड, वो नहीं होना चाहिए. मतलब ये लोग भी इंडिविजुअल्स हैं तो दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज अदर इंडिविजुअल्स. उसी की वजह से हम लोगों को उनको पूरा रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा. अगर नहीं होंगे तो उनको हमेशा हम देखेंगे कि दूसरी दृष्टि से कि ये काम नहीं कर सकते और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना और उनको कंप्लीटली रिहेबिलिटेट करना, उनको वापस से कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना है. उसी से ये सब जो किदवंतियां हैं उनसे उनको दूर रखा जा सकता है और वो भी एट पार फील कर सकते हैं एबल बॉडीड के साथ. क्योंकि जो डिसेबल्ड और जो मेनली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डिसेबल्ड कहते हैं, उन लोगों में भी एबिलिटीज होती हैं बट दे आर डिफरेंटली एबल्ड. तो हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सब चीजें देखनी चाहिए जिससे सब उन लोगों को भी एबल बॉडीड के एट पार देखा जा सके. जी. दूसरी बात है, अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सुधर जाता है अगर हमारे प्रयास के द्वारा, तो वो लोग आराम से समाज में आराम से जी सकते हैं. तो मतलब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी yes. बहुत ज्यादा जरूरी है इस एस्पेक्ट से हम देखें तो. So ultimately physical medicine rehabilitation is a branch of medicine which aims to enhance and restore functional ability and quality of life. So mainly the rehabilitation focuses around the quality of life. And टाइमली अगर हम इंटरवेंशन करें टू फोकस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन प्रॉब्ली हम जो सेकेंडरी और टर्सरी डिसेबिलिटीज हैं उनको हम रोक सकते हैं. अगर रोक सकते हैं तो उनके जो रिपरकशन होंगे एक पेशेंट पे एज ए होल वो बहुत कम हो जाएंगे और डिसेबिलिटी का जो इंडेक्स है वो भी कम हो जाएगा. तो उनको रीइंटीग्रेशन करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी मेथोडोलॉजी के द्वारा. सपोज इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. सपोज एक पेशेंट इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का है जी, और उसको बहुत अधिक तरीके से एक्सरसाइज के द्वारा मसल्स में ब्लीडिंग हो जाती है और एक कॉमन कंडीशन है हेटेरोटॉपिक ऑसिफिकेशन. अगर उस टाइम में पेशेंट का ध्यान ना किया जाए या जो पेशेंट का केयर टेकर है उसको पता ना लगे तो उसमें हड्डी बनने की संभावना होती है और उसमें जॉइंट का मूवमेंट ख़त्म हो सकता है. तो उसके लिए टाइमली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है. और unfortunately physicians who are not trained in PMR, they are not well aware of this entity. इसका मतलब कि कंडीशंस पे जैसे आपने बताया डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है. जैसे आपने SCI का एग्जांपल दिया, तो जैसे सर ने भी बताया था कि कुछ कंप्लीट इंजरीज होती हैं, कुछ इनकम्प्लीट इंजरीज होती हैं. तो उसमें डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है पेशेंट का, क्या कंडीशन है, और फिर उसको बाद में आगे मैक्सिमम उसकी कैपेबिलिटीज के अंदर हम उसको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. जैसे रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं कि इफ वी कैन इम्प्रूव सम कंडीशन इट इज ओके. इफ कंडीशन इज नॉट क्योरेबल बट इट कैन इम्प्रूव, वी कैन. एंड इफ कंडीशन इज नॉट क्योरेबल और इट कांट इम्प्रूव, so rehabilitation means how to live with those conditions in a productive manner in the society. और जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जनरली सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट डे टू डे प्रैक्टिस में हर फिजिशियन के पास आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमने ये सुना है जो पेशेंट आता है बहुत लेट तो हम पूछते हैं भाई पहले क्यों नहीं दिखाया. ऑलवेज दे से कि जो पीडियाट्रिशियन थे उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि नहीं ये तो जैसे जैसे तुम बड़े होगा, बच्चा बड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा. तो बेसिकली लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है.
कि क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ऐसे बच्चों से जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन और टर्शियरी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करें और वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह से लाइफ जी सकते हैं। अदरवाइज अगर इवन हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी नॉलेज हो इस बारे में कि फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन का क्या रोल है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम इशू है। सर जैसे आपने बताया अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ कुछ जैसे मास ऑफ पॉपुलेशन में कुछ अवेयरनेस की भी कमी है। जैसे अगर हम बात करें रूरल और अर्बन एरिया में, तो अर्बन में ठीक है कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, अवेयरनेस होती है, पर रूरल एरिया में लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वो मतलब मिसकंसेप्शंस भी है उनमें कि शायद उम्र के साथ ये चीज ठीक हो जाएगी या बाकी जो भी कुछ उनको लगता है कि ठीक है। जी मिसकंसेप्शन भी है और वहाँ तक रीच नहीं है नॉर्मल डॉक्टर का भी। इंडिया की बहुत सारी पीएससी अभी खाली पड़ी हैं। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन जी अखबार में एक बड़ा सा आर्टिकल था कि जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रंस को उन्होंने गर्दन तक मड में डाल के रखा, जब दबा के रखा जब तक सूर्य ग्रहण खत्म ना हो गया इस फॉल सोप में। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो उनको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे लोग पूछते हैं कि भाई रिहेबिलिटेशन वाले क्या करते हैं या रिहेबिलिटेशन फिजिशियन क्या होते हैं, पीएमआर एक्सपर्ट्स, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है कि जो रिहेबिलिटेशन फिजिशियंस हैं नॉर्मली दे डील विद द नर्व प्रॉब्लम्स which may include central nervous system or peripheral nervous system, muscles anywhere in the body and the bones, and they also deal with the injuries and the illnesses that affect how a person move otherwise. So basically PMR especially does those kind of function which normally other people they just believe that prescribe this medication, do these surgical options and patient will be all right, and if anything left over then they said that we can't offer you much beyond this. And finally I think that is the time where the rehab physicians should move in, and it's their baby at that particular time so that they can take care of rest of the things. आजकल तो सर जैसे रिहैबिलिटेशन की बात करें तो इट्स प्लेइंग अ वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल। आजकल हम अपनी कॉमन लाइफ में देखें कि जो लोग ज़्यादा ड्यूरेशन तक बैठ के काम करते हैं, बैक एक हो जाता है या नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी आई थिंक रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। मैम उसमें बहुत अहम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, क्योंकि ये बहुत अहम इश्यू है आज के। जो काफ़ी डिजीज हम देख रहे हैं हमारे वर्क प्लेस से जनरेट हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हमारा पोस्चर ठीक ना हो बैठते वक्त, या हमारा जो जिस पे जैसे सपोज कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं हम, तो उसमें हमारा एडजस्टमेंट रिस्ट का ठीक ना हो, या हम स्क्रीन जिसमें देख रहे हैं उसका हमारा जो राइट एंगल होना चाहिए अदरवाइज वो ठीक ना हो। तो ये सब चीजें रिपीटेड इंजरी कर देती हैं। रिपीटेड इंजरी होने की वजह से या लॉन्ग सिटिंग होने की वजह से या पोस्चरल अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज जनरेट हो रही हैं। अगर उनको हम एडुकेट कर दें तो प्रॉब्ली दोज डिजीज कैन बी टेकन केयर ऑफ, कंप्लीटली कैन बी वैनिश्ड ऑफ। मतलब प्रॉपर केयर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब अवेयरनेस हो लोगों में। एग्जैक्टली। So now I'd like to tell you that how do rehabilitation physician diagnose the problem. The rehabilitation physician take the time needed to accurately pinpoint the source of an ailment. I mean, it is always not necessary that whosoever has case been referred to PMR specialist, they should go with that same diagnosis. So they have to look into that aspect. They need to evaluate again, and if there is some problem, the diagnosis also need to be revalidated. And their specific diagnostic tools are the same as those used by other physicians, which includes detailed medical histories, detailed physical examination, and of course required then different imaging studies also, CT, MR or general X-rays, and with the addition of special techniques in electrodiagnostic medicine. Electrophysiology also need to be taken care of by rehab physicians, nerve conduction studies, and so many other evoke potentials also, those can be done by the rehab physician. सर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हमारी एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे ये कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो ये माना जाता है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं,
मतलब बाय ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह से, और उसकी प्रॉपर केयर करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रेन में कुछ इंजरी है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली बच्चों में हम कॉमनतर देखते हैं मेनिंगोमाइलोसिल, जी, जो बेसिकली डिफेक्ट होता है न्यूरल कैनाल का, जिसमें एक फोड़ा बन जाता है, या तो नेक के रीजन में होता है या लोअर बैक रीजन में होता है। तो बेसिकली उसका जो मेन स्टेप ट्रीटमेंट है, बिगिन विद इज सर्जरी। आफ्टर सर्जिकल रिमूवल बंट आउट छोड़ देती है, क्योंकि नाव भी डैमेज हो सकती है, कई बार नाव एक दूसरे में फंसी होती है, जिसको टीदर्ड कॉर्ड कहते हैं। तो उसकी वजह से या तो उसी टाइम कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, या डेफिशिएंसी जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, ट्रैक्शन की वजह से जो नर्व है और डैमेज होती जाती है, और वो डैमेज होने से वीकनेस बढ़ सकती है, और ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल, तो यूरिनी और स्टूल का कंट्रोल भी खत्म हो सकता है उसमें धीरे धीरे। तो वो प्रॉब्लम सारी फिर रिहैब फिजिशियन को ही एड्रेस करनी पड़ती है कि अगर पावर वीक हो गई है तो मोबिलिटी इज अ ग्रेट कंसर्न, तो उसमें एक्सरसाइज के जरिए ठीक होंगी, या उनको कोई ऑर्थोटिक मैनेजमेंट सपोर्ट देना पड़ेगा जिसके जरिए चल सके। ब्लैडर में है पूरा इवेल्युएट करके कि क्या ब्लैडर में किस तरह का ब्लैडर है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप है या लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो चॉक आउट करते हैं। ऐसे ही बाउल में भी रेगुलेशन करते हैं, जिससे ये नहीं कि बच्चा सॉइल करता रहे, घर में कोई भी आए तो उसको लगे कि बहुत यहाँ पे तो स्मेल आ रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो लोग उनसे फिर धीरे धीरे घुलना मिलना भी छोड़ देते हैं, और सोशली वो स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं ऐसी फैमिलीज। सर जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे सेरिब्रल पाल्सी या मेंटल रिटार्डेशन, तो उस केसेस में, जैसे ये पर्टिकुलर केसेस होते हैं, उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? सेरेब्रल पाल्सी में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, एंड it basically requires help of a pediatrician and PMI specialist, and of course our paramedical or allied professional colleague depending upon the problem. Usually patient में spasticity होती है, contracture बन जाते हैं पहले अगर neglect हो गया हो, तो प्राइमरी एम होता है कि अगर बंदे का IQ लेवल नॉर्मल होता है, या इनफैक्ट माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन तक भी होता है, उसका हियरिंग अच्छा है, उसका विजन अच्छा है, तो हम उसको एंड कॉन्ट्रैक्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसमें पेशेंट का रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। पेशेंट कैन बी इंडिपेंडेंट इन हिज एडल्ट लाइफ, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। बेसिकली 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं सेरेब्रल पाल्सी को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड में इनफैक्ट हम इंटरवेंशन करें नहीं करें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पेशेंट विल बी इंडिपेंडेंट। मॉडरेट लोग जो होते हैं जिनमें स्पास्टिसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्चर होगा, थोड़ा बहुत विजुअल डेफिशिएट होगा विच आर करेक्टेबल बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और या हियरिंग डेफिशिएट होगा जिसमें हियरिंग एड से कुछ काम चल जाएगा। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चर्स उसको हम सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, एंड पेशेंट अगर पेरेंट्स उस बच्चे के साथ मेहनत करें तो दैट चाइल्ड कैन बी इंडिपेंडेंट एंड कैन लीड टू प्रोडक्टिव लाइफ। एंड थर्ड वैरायटी इज सीवियर केसेस इन विच देयर इज नो विजन और आइदर हियरिंग इम्पेयर्ड और कॉन्ट्रैक्चर्स आर सो बैड, इन दोस केस आल्सो PMR वर्क्स। आप किसी को मरने तो नहीं दोगे, तो कैसे उस बच्चे की लाइफ को कंफर्टेबल किया जाए। ठीक है, बच्चा नहीं चल पा रहा है, बट कैसे बच्चा घर में आराम से लेटे, कैसे व्हील चेयर पे आराम से बैठे, कैसे उसके डेली काम वो मैक्सिमम काम अपने आप कर पाए, ये इम्पोर्टेंस है PMR इंटरवेंशंस का। तो मतलब डिफरेंट कंडीशंस में वही बात आ जाती है कि किस तरीके से केयर दी जाए और किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, वो सब रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का ही काम। बिकॉज बाकी जितनी मेडिसिन की ब्रांचेस हैं उसमें बोलते हैं कि आपका ये डिजीज है, दिस आर नॉट क्यूरेबल, वी कांट डू एनीथिंग, बट स्टिल वी कैन डू समथिंग। इफ वी कांट क्योर, वी कैन do to improve the quality of life of that particular person, and they can lead their life with dignity. That's very most important thing. And second thing, जैसे cerebral palsy का जैसे डॉक्टर अनिल बता रहे थे, मेंटल रिटार्डेशन भी एक बहुत अहम मुद्दा होता है ऐसे बच्चों में। अगर मेंटल रिटार्डेशन प्रोफाउंड है तो ट्रेन करना उनको थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उनको ईजी है। दूसरी न्यूअर
एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ गई, लाइक फिनॉल ब्लॉक्स आ गए और बोटॉक्स आ गया है, उनसे हम उनके फंक्शनल रेस्टोरेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। बट फिर भी ट्रीटमेंट का मेन स्टेज रहता है फिजिकल थेरेपी, वो तो साथ में करना ही पड़ेगा। ये तो एडजेंट थेरेपी है जिससे एक्सपेडाइट हो सकती है आउटकम। दूसरी बात है, सेरिब्रल पाल्सी में जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। बिकॉज लोग सोचते हैं कि एक बार आ गए हमारा काम खत्म हो गया। नो, जब तक बच्चे का ग्रोथ पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसके कॉन्ट्रैक्चर बनने के चांस होते हैं, या पेरेंट्स सोचते हैं हमने बोटॉक्स लगवा लिया 16,000 रुपये का इंजेक्शन, अब अभी हमारा बच्चा ठीक हो गया। नहीं, ये 3 महीने तक काम करेगा। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं कराओगे, कॉन्ट्रैक्चर दोबारा आ जाएगा। तो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। So the role of rehabilitation physicians in the treatment or management of such disabled category of people is, once they have diagnosed, the rehabilitation physician design a treatment plan, and that need to be carried out by patient themselves, by the caregiver, or maybe their team members. And the team members may be, the physical therapist, occupational therapist, vocational counselor, medical social worker, and art and craft instructors, and so many other. The interdisciplinary colleagues also, like neurologists, or maybe orthopedic surgeon at times, or maybe pediatrician. It depends basically what kind of ailment one is suffering from. तो सर, जैसे आपने बताया कि रिहैबिलिटेशन में अलग अलग प्रोफेशनल्स का, मतलब जो एक टीम वर्क होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पैरामेडिक प्रोफेशनल्स हो गए, या जो मेन रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं जो फिजिकल मेडिसिन के फील्ड में ही है, तो उन साथ में फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करना, उनको एजुकेटेड करना, उनको अवेयर कराना उनके बच्चे की कंडीशन के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट दे रहे थे इस टॉपिक के बारे में। आगे की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। दिस इज अपर्णा। She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी,
एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back to our session where we're discussing about the physical medicine and rehabilitation with our expert. So let's continue this discussion with our expert. Okay, now I'll come on to the interdisciplinary medical team, and which is inclusive of doctors as well as non-physicians. And it includes medical professionals such as neurologists, psychiatrists, orthopedic surgeons and neurologists, and pediatrician as well. And then non-physician colleagues or health professionals are such as physical therapists, occupational therapists, speech pathologists, vocational counselors, psychologists and social workers. And the team is different for each patient, and team's composition changes during treatment to match the patient's shifting needs. I mean, it's always not necessary that same team members will be for every patient. So it has to be tailor-made according to the need of particular patient or diagnosis of particular patient. And all these team members help in providing an appropriate treatment plan. Rehabilitation physician help patient stay as active as possible at any age, at any given point of time of their treatment plan. And their broad medical expertise allows them to treat disabling condition throughout a person's lifetime. It's not the one point of time that rehab experts can extend their services to such patients.
And then question comes that what is the scope of the rehabilitation physician's practice? Physical medicine rehabilitation is often called the quality of life profession because its aim is to enhance patient's performance. And the job of a rehabilitation physician is to treat any disability resulting from disease or injury involving any organ system in the body. And the focus is not on one part of the body, but instead on the development of comprehensive program for putting the pieces of person's life back together. So there has to be holistic approach, and it all includes all domain of a person's life, whether it is medical or social aspects, emotional aspect and vocational aspects after an injury or a disease. And in our part of the world, the training of rehabilitative physicians, once they complete their MBBS programs, then they can opt for either diploma in physical medicine rehabilitation, which is 2-year residency program, or they can opt for post-graduation program like MD or Diplomate of National Body. That's 3-year residence program in physical medicine rehabilitation. And these are the key component of training of rehabilitation physicians. They are mainly like for making any diagnosis, which might include medical as well as the physical limitations, to identify mental and psychological symptoms, to recognize the social needs that include interpersonal relationship amongst caregivers, and also we need economic concerns in a particular patient, and the unique manifestation and the need of a particular disabled. So I would like to back on the last slide. So to make any diagnosis, medical and physical limitation. So our specialty is different in respect to other specialties because it gives emphasis on physical limitation caused by a particular degree. It is not organ specific. It is function specific, how a disease modifies or change the function of the person, or in what way we can improve those functions. So broadly, if we discuss of PMR, it is a vast subject which is roughly divided as musculoskeletal medicine under the broader head, neuromuscular rehabilitation and the cardiopulmonary rehabilitation. And also it has got newer fields like geriatric rehabilitation, pediatric rehabilitation, burn rehabilitation, cancer rehabilitation, and rehabilitation for visually and the hearing impaired. And the armamentarium available at our disposals are medicine, because the rehab people, they do deal with the medicine part, and they do surgeries also and simultaneously various interventions. They do use the physical modalities, use of exercise and physical therapy. They have got orthosis and prosthesis. Orthosis is meant for the support of any joint which is weak or unstable, and prosthesis are being used for the replacement of any amputated part. And simultaneously there are need of assisted devices and aids to make them independent, and to add on to their mobility they require many kind of wheelchair, which we will show you later on, and of course the counseling and the various advices regarding their social interpersonal relationship or vocational problems. सर जैसे ये अभी आपने बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है कि जैसे ऑर्थोटिक्स के बारे में बताया कि जिसमें हम एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करते हैं टू गिव द बेटर सपोर्ट टू द इंडिविजुअल्स, और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं. तो कुछ एग्जांपल देके आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जैसे हम लोगों के पास पोलियो पेशेंट्स आते हैं, उनमें जो नॉर्मल डे रूटीन पब्लिक भी देखती है कि उनको वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, एम्बुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कई लोग हॉप कर रहे होते हैं क्रचेज के ऊपर, कई लोग बेचारे नीचे घसीट के चल रहे होते हैं, कुछ लोग क्रॉल कर रहे होते हैं जो कि क्वाड्रीपॉड भी कहते हैं, चारों हाथ पांव पे चल रहे होते हैं. ऐसे कॉमनली इनसाइट हम देखते रहते हैं ऑन द रोड्स. तो ऐसे लोगों को अगर हम इवेल्युएट करें प्रॉपरली और उनके कॉन्ट्रैक्चर्स हों या डिफॉर्मिटीज हों, उनको सर्जिकली एड्रेस कर दें, वो ठीक हो जाएं, उसके बाद हम उनको कैलिपर प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जो कि लॉन्ग लेग कैलिपर से शुरुआत होकर छोटा कैलिपर भी हो सकता है, और सम टाइम माइनर मॉडिफिकेशन उनको खाली फुटवेयर में करना पड़ता है, जिससे उनकी मोबिलिटी अच्छी हो जाए और वो इंडिपेंडेंट हो जाए. जो भी वो सारा लेके पहले चल रहे थे या नहीं चल पा रहे थे अच्छे से, वो सब ठीक हो सके.
और कई बार क्या होता है कि जो सोशल एस्पेक्ट्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट डिपेंडेंट होते हैं किसी पे शुरुआत में, चाहे वो कम्युनिटी पे हो, चाहे उनके ओन पेरेंट्स के ऊपर हो या फैमिली मेंबर्स में हो। तो जब तक उन लोगों से बातचीत ना हो और उनके बारे में ना समझा जाए, तब उनको अंडरस्टैंड करा सकते हैं क्या डिजीज है, क्या इनपुट तुम्हारा होना चाहिए जिससे इंडिपेंडेंट बन सके, और आपको किस फ्रीक्वेंसी से डॉक्टर के पास जहाँ पे भी सुविधाएं हो वहाँ ले जाना चाहिए। तो मतलब ये उनका एक काउंसलिंग का पार्ट हो गया, जिसमें उनको खुद उनकी अपनी कंडीशन के बारे में बताना और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना कि यस दे आर आल्सो द सेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी जैसे और इंडिविजुअल्स हैं। हाँ, they should never be treated as left over, because people think now पोलियो हो गया, nothing much can be done, वैक्सीन टाइम पे लगाया नहीं, I don't know what to do, where to go. So if they comes to rehab centers, at least they make understood that what's happening around and what can be offered to them and how it's going to help them. That's a very important thing for the patient as well as for the caregiver, so that they can go back to their community, they can start their work. If the child is not going to school, they can go to the school, maybe by use of tricycle, maybe by use of some crutches only, or maybe with use of the calipers. So it depends like what the need felt in a particular case, and accordingly it can be strengthened. और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो जैसे थोड़ा एज के बाद एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसी ट्रॉमा या इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से कि हो कंप्लीट इंजरी हो गई या पेशेंट है कि ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स और व्हील चेयर बाउंड हो गया, तो उसमें आई थिंक काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली पेशेंट को पहले डिजीज कंडीशन के बारे में पूरी बताना चाहिए काउंसलिंग में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट वही है, बिकॉज पेशेंट एक भ्रांति में रहता है कि यस मैं एक बड़े अस्पताल में आया हूँ, मैं बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे सर्जन को दिखा रहा हूँ, तो मेरा हाथ पैर या स्पाइनल कॉर्ड पूरा ठीक हो जाएगा, जो कि सब केस में नहीं हो पाता है और पेशेंट को उसमें निराशा लगती है जी। और कुछ पर्टिकुलर समय के बाद अगर पेशेंट में को रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन नहीं मिल पाता है, जो कि 8% इंडिया में बहुत कम है, तो पेशेंट परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है। जब रिहैब इंटरवेंशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पेशेंट का जो प्रोडक्टिविटी जो होना चाहिए था उस चोट के बाद भी वो कम रह जाता है। दूसरी बात है, जब पेशेंट को आप बताओगे कि आपका कंडीशन ये है, आप आज की तारीख में सोचो कि अगर आज आप काम को कैसे कर सकते हो। पेशेंट का एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं होता, हालांकि डिसेबिलिटी के विषय में उसके बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेजेस हैं। पहले डिनायल होता है, एंगर होता है, डिप्रेशन होता है, फिर लेटर ऑन एक्सेप्टेंस आता है। सो इट इज़ ए वर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन फिजिशियन कि एट ईच एंड एवरी कॉन्टैक्ट उसको पेशेंट के साथ काउंसलिंग सेशन लेना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, तभी पेशेंट लंबे समय ट्रीटमेंट को फॉलो अप कर पाता है। तो सर जैसे सर ने बताया कि किस तरीके से मतलब काउंसलिंग करना चाहिए और फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे फैमिली को पता चलता है अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में, तो हर चीज़ स्टेजेस को लाइक वाइज फिर फॉलो करते हुए वो लास्ट में एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। या जैसे कॉमन प्रॉब्लम भी हम देखते हैं कि कोई बैकएक का पेशेंट आता है, पढ़ा लिखा भी आता है, यू गिव देम एनी नंबर ऑफ द मेडिकेशन, दे आर लव टू हैव दोज मेडिकेशन, बट अगर हम उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रोग्राम बताएं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं, तो बहुत जल्दी से वो मेलिएबल नहीं होते हैं। टाइम ही नहीं मिलता डॉक्टर साहब, ये हम तो करते हैं। जब हम उनको रीइंफोर्स करते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे करते भाई, करके बताओ, देन फाइनली वी कम टू नो दे आर नॉट डूइंग इट, दे जस्ट टेलिंग लाइक। तो एक कॉमन आदमी के लिए एक प्रॉब्लम है जो कि एक बैकएक या नेक पेन के लेके साथ दवाइयां खा के चल रहा है, तो जिनको ग्रीवियस इंजरीज हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे अभी बात चल रही थी, उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। और उनका मेनली एम यही होता है, जब भी बात हम करते हैं उनके अटेंडेंट से या उनके स्पाउस से, वो हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब ये कब चलेगा दोबारा पाँव पे, ठीक है, ये सेक्सुअली कब एक्टिव होगा। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, ये उनका बहुत अहम सवाल होता है हम लोगों से। और हमारी सोसाइटी इतनी कंजर्वेटिव है, वो यही सोचती है कि आदमी का ठीक होने का मायना है कि वो पाँव पे खड़ा होकर चले और वो सेक्सुअल लाइफ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वो भी अहम इशू है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे रिहेबिलिटेटिव मेजर्स हैं, वो एनकरेज करते हैं, वो एनफोर्स करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो सब चीजें अगर हम उनको नहीं बताएंगे, नहीं डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू टेक, देन प्रॉब्ली कुछ काम नहीं करेगा, तो वो डिप्रेशन में रहेंगे।
समटाइम उनको जो डिप्रेशन होता है उसके लिए भी हमको मेडिकेशन देनी पड़ती है, बार बार काउंसलिंग सेशन देना पड़ता है। दूसरा, जो मरीज उनके साथ होते हैं, जैसे हम लोगों के स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वार्ड है, उसमें और दूसरे पेशेंट होते हैं, वो बहुत एक्टिवली थेरेपी कर रहे होते हैं, दे लर्न देमसेल्व्स बाय देम नो, तो उसका भी बहुत अच्छा इंप्रेशन हमने देखा गया है। अभी ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स आई एम सीइंग डाउन द लाइन कि आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे पहले हम देखते थे कि बहुत जल्दी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट होते थे, बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन हो, उनकी डेथ हो जाती, चाहे यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन हो, सेप्टिसीमिया हो या कुछ और हो, या सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते थे, सुसाइड कर लेते थे। लेकिन अब काउंसलिंग और अच्छा मेडिकेशन या दूसरे पीयर ग्रुप को देख के उन लोगों में काफी खुशहाली आ रही है, वो वापस से मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं। और कुछ सरकार के भी बहुत अच्छे जो इश्यूज, PWD एक्ट इनेक्ट हुआ और सारी फैसिलिटीज जो सरकार दे रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी चेंज आया है सिचुएशन। तो मतलब ओवर द टाइम जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, रिसोर्सेज वगैरह, उसके साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन के अलावा पीयर ग्रुप काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक पेशेंट बहुत पुराने ज़माने से आता है हमारे डिपार्टमेंट में, शामली का वो पेशेंट है, एंड ही डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी व्हेन ही वाज ए intermediate student. After that, that person did MSc in agriculture and he is a productive member of the society. He comes on wheelchair by Shamli by different means, and that person gives the source of inspiration to different spinal cord injured patient. Now that patient is unable to stand because he developed some complication and he got fracture of both lower limb. So, but he managed wheelchair very well. You can imagine a person coming independently without any assistance from 250 kilometer and in the valley itself. Then now I would like to tell you, like in Indian scenario, what's the role of rehabilitation experts. If we look at the population overall, it's more than 1 billion now, and still the PMR specialist and patient ratio, not I'm talking general physician and the patient ratio, which is also very low, but PMR and the patient is, PMR specialist and patient ratio is still very, very low, and the lowest in the world. And you see, there is an increase in the lifespan in Indian situation also. So we are getting large number of population which aging population which they are suffering from the degenerative conditions or diseases. And apart from that, still we are getting, though we are doing very well on the polio eradication program and national leprosy eradication program, but still we are getting so many polio afflicted patient, leprosy afflicted patient. And of course, the conditions of road has been improved, the high motorized vehicles has come up in the Indian markets now. We are getting every day, a lot of spinal cord injury patients also. And of course, lifestyle is a real burden because we are eating too much of fatty food. We are really hardly doing any, the physical activities, and the smokers are there, and too much of pollution and the stress factor, which are also leading to cause, stroke or the paralysis in the body. And the trauma also sometimes lead to, and adding on every day lot of, amputation patients in our conditions. And with improved, like I'll give you an example of pediatric patients. Now there is a lot of improvement in newborn care system, so that a greater proportion of preterm and birth related injury babies survives now. Earlier there was death rate was very high, prevalence of death rate, pediatric death rate was quite high, so survival was not a question. But now with the advent of newer modalities, so they are being saved. So we are increasing the number of the pediatric disabilities also, and of course the modifiable disease, which has quite a big hub in our Indian setup, which is also adding on too much of disabled population in our country. सर, जैसे हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन की और फिजिकल मेडिसिन की, तो जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी कि जो एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक्वायर्ड तो हो गया कि किसी इंजरी या ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शन, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बाय बर्थ होती है, मतलब उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न, ही इज बोर्न विद सम प्रॉब्लम्स?
देखिए उसका अभी तक कोई जो साइंटिस्ट हैं खास उस पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन पॉस्टुलेशंस हैं उसकी बहुत ज्यादा। जैसे पहले कुछ दवाइयां यूज होती थी लाइक थैलिडोमाइड्स होती हैं, उनसे फोकोमेलिया जिसमें सीलिंग ऑफ लिम्ब हो जाती थी। कुछ जब वूम में बेबी होता है उस टाइम मदर को इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मम्प्स हैं और कई तरह के वायरसेस हैं, वो लोग ब्रेन पे अटैक करते हैं जिससे मेंटल रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। या कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे पैदा होते हैं। और कुछ एट द टाइम ऑफ बर्थ भी इंजरीज होती हैं, जैसे फॉर्सेड डिलीवरी करनी पड़ती है, या किसी को एक्सपेक्सिया हो जाए बिकॉज कॉर्ड जो प्लेसेंटा होता है उसका रॉन्ग माल पोजिशन हो, या कई में जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है, या कई बच्चे जो गंदा फ्लूइड होता है वो अंदर चला जाता है उनका, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सीलिंग ऑफ लिम्ब्स काफी प्रॉब्लम है। और कुछ जो एब्सेंस ऑफ बोन्स होती हैं, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ बोन्स होती हैं, वो भी कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं हम, जो लोअर लिम्ब में भी होती हैं, अपर लिम्ब में भी होती हैं। लोअर लिम्ब में देखते हैं कि पैर छोटा होता है बचपन से, जिसको कंजेनाइटल एम्पुटेशन हम कहते हैं। कई आपने देखा होगा कि पैर टेढ़ा होता है जिसको क्लब फुट या सीटीवी कहते हैं। ऐसे क्लब हैंड भी होता है जिसमें जो इनसाइड जो बोन होती है, रेडियस बोन होती है, उसकी एब्सेंस होती है, तो वो अंदर की तरफ हाथ मुड़ जाता है। ये भी कॉमन कंडीशंस देखी हुई है। लेकिन अगर वो रिहैब में टाइम से आए तो पेशेंट का सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव होता है, उसका रिहेबिलिटेशन प्लान भी एक्सपेडाइट हो जाता है। और वो बेसिकली जैसे कुछ लोगों में देखा गया कि अगर चल नहीं फिर पाते हैं तो पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। अगर लिम्ब उनको टाइमली मिल जाए अप्रोप्रिएटली, या कोई डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाए आइदर बाय यूजिंग अ प्लास्टर or maybe surgical maneuverability, then probably they can be given orthosis and they can be, I mean, as good as the able-bodied people. तो बहुत सारे रीजंस जैसे आपने बताया, मतलब प्रीनेटल, पेरीनेटल और जो पोस्टनेटल कॉजेज होते हैं, तो ये पोस्टुलेट्स हैं कि देयर कैन बी एनी ऑफ द कॉज फॉर द कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स। Yeah, that's there. Like sometime देखा गया न्यूरल डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें देखा एक फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट टाइमेस्टर में जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो फॉलिक एसिड देते हैं, तो उससे सब्सटेंशियली जो न्यूरल डिफेक्ट्स होते थे लाइक मेनिंगोमाइलोसिस, दोस हैज बीन रिड्यूस्ड अप टू अ लॉट। दूसरा बहुत सारे, जैसे डायबिटीज स्लाइड की पहली लाइन है, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी फीमेल्स में डायबिटीज कॉमन होती है और ड्यूरिंग द period of gestation it sometimes appears in the normal females. Second thing, if somebody is on anti-epileptic drug for a long time, so that lady can deliver a child with neural tube defect. So there are many postulates about different toxins, drugs, nutritional deficiency, different infection during the antenatal and postnatal period, like as told, virus infection, cytomegalovirus is infection which can give rise to macrocephaly, or rubella infection which can cause mental retardation. और जैसे अभी देखा गया है, जैसे अल्कोहल अब्यूज भी इंडियन कम्युनिटी में बहुत प्रिवेल कर रहा है आजकल। स्मोकर्स भी बहुत फीमेल्स कर रही हैं स्मोकिंग भी, तो ये भी एक चीजें हैं जो बर्थ डिफेक्ट करती हैं। और एक जो एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया होता है जिसमें हाइपरटेंशन हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्पसिया होता है तो इट गोज समटाइम अननोटिस्ड, वो भी एक बड़ा कॉज कंट्रीब्यूट कर रही है इस तरह के बर्थ डिफेक्ट्स में। एंड पैसिव स्मोकिंग इज आल्सो ए वेरी क्रिटिकल फैक्टर। जो लोग घर में प्रेग्नेंट वुमेन के सामने स्मोकिंग करते हैं, सोचते हैं कि हम पी रहे हैं वो तो नहीं पी रही, बट उसका इल इफेक्ट जो है बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारे रीजंस है जो इस प्रॉब्लम्स को मतलब देखें कि जो कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे लाइक इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज अभी जो हमारे कंट्री में टाइप 2 डायबिटीज बहुत प्रिवेल कर रहा है because of the faulty lifestyles and kind of dietary habits. And for that, genetic factors are one of the reasons which are responsible. Other causes like physical inactivity, and you see there is abundance of cheap fats and carbohydrates are the major culprits because they put on weight, lack of exercise, then there's a likely chance the glucose intolerance lead to the diabetes type 2.
And stress is another factor, because stress always be more stressed, like being a doctor, be more stressed in the curative part. We never ever talked about the preventive aspects. That also need to be addressed, and that can be spread over in the masses by by using so many pamphlets, or maybe some kind of educative videos, or maybe print out in the print media, or maybe in the TVs. And with this, we can avoid so many surgeries. And because the surgeries like heart surgeries, which count for a lot of money, at the same time deformity of joint and elderly, for joint replacement, it also counts for a lot of money. And these are the clinical conditions. If we educate them, if they really want to take care of them, then probably these things can be avoided, and the economic burden could be reduced down substantially. So I think we need to work on that preventive aspect also, which is very, very important. We need to be addressed, rather than to go and stress upon the curative part, or more on the using of gadgets and other things. सर, जैसे आपने बताया कि जैसे इंडिया में किन किन तरह की जैसे डायबिटीज है, और जैसे आपने बताया टाइप 2 बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस भी है, और हम ज्यादातर फोर्स करते हैं क्यूरेटिव पे रादर देन प्रिवेंटिव। इसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को, आशा के पंखों पे we can and we will fly, we can and we will fly. Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system, and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जैसे इंडियन सिनेरियो में क्या है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का रोल, और प्रिवलेंस क्या है किस कंडीशन की। तो आइए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बातें हैं, और मतलब क्या रोल है रिहैबिलिटेशन का।
नहीं, जैसे आज के सिनेरियो में हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अनअवेयर अबाउट दिस स्पेशलिटी इंक्लूडिंग आवर own colleagues like medical professionals, and most of us they confuse between PMR with the psychiatry and the physiotherapy. Though physiotherapy is one of the part of the physical medicine rehabilitation, so the necessity and benefits of PMR are grossly underutilized, because if our colleague doesn't know, then probably they don't send the patient to us. So there is a pressing need for patient education and the information. And in daily practice in our OPD setup, we come across with so many disease conditions like cerebral palsy children, developmental disorder children, myopathies, congenital defects, spina bifida, and poliomyelitis sequelae. And other diseases like spinal cord injury patients we do see every day in our OPD setup, spinal column deformities like scoliosis and kyphosis, amputations, various type of amputations, post-fracture syndrome and sequelae, traumatic brain injury patients, nerve injuries and arthritis, and musculoskeletal problems such as low back pain, neck pain, tendinitis and bursitis, and also injury occurs during the sports. And so far there are so many training centers are available in the field of physical medicine rehabilitation. One is at All India Institute of Medical Science in New Delhi, and other center in Delhi is a Safdarjung Hospital which catered the MD programs and the diploma program in physical medicine rehabilitation. And other institute is National Institute is All India Institute of Physical Medicine Rehabilitation Mumbai, the Christian Medical College Vellore Hospital in Jaipur, Kolkata, Cuttack, Patna, Chennai, Trivandrum, Calicut, Imphal and Bangalore. There are so many centers which cater the MD programs and diploma national board program also. And the rehabilitation physician practice of course in the rehabilitation centers, hospitals and the private setup as well. And they often have broad practices, but some concentrate on one area such as pediatric rehabilitation, sports medicine rehabilitation, geriatric medicine, brain injury, pain and palliative care rehabilitation, and other special interest group is also available. लाइक सर जैसे आपने अभी तक बताया कि डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, तो इस तरीके से मतलब ये कि जो प्रोफेशनल इस फील्ड में है रिहैबिलिटेशन के, विद हिज और हर नॉलेज ही कैन इम्पार्ट और शी कैन इम्पार्ट नॉलेज टू द अदर इंडिविजुअल्स. अभी जैसे हमारे पूरे इंडिया में हम देखते हैं कि जो फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट दे वेरी हैंडफुल, दो स्पेशलिटी इज इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो आई थिंक अब जो नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं और जो नंबर बढ़ रहे हैं तो एमडी प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं. और साथ में अभी जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस हैं जो दिल्ली में एग्जिस्ट करता है, उन्होंने डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड भी खोले हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं, और कुछ जो अच्छी क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज कैटर कर रहे हैं उनको भी उन्होंने एम्पावर किया है डीएनबी कोर्स रन करने के लिए. तो जिससे ज़्यादा लोग होंगे तो नेचुरली सेंटर में तो होंगे यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, बट साइमल्टेनियसली दे माइट गो इनटू द rural areas also, so that all disabled people they can get benefit at their doorstep level. So the government is also working much ahead on this area, but I think time is going to tell us that how many centers comes up and how many trained manpower is available in the country. तो जैसे सर अब एक प्रोविजन भी आया कि जैसे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते हैं दे हैव टू स्पेंड 1 ईयर इन रूरल एरिया, तो आई थिंक ये भी एक फॉरवर्ड स्टेप है इस चीज के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए. हाँ, इसमें अभी जो हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट करिकुलम आया है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है, उसमें कुछ इंटीग्रेटेड लेक्चर्स और सेमिनार्स अभी पीएमआर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो की एरियाज हैं उनके शुरू हो गए हैं, और हम लोग वी आर पार्ट ऑफ दैम and we are teaching undergraduates. So I think उन लोगों को नॉलेज और स्किल होगी, though it may not be complete but somehow partial भी है, तो उसका बेस्ट यूज करके एटलीस्ट they can create a referral services to some medical colleges, district hospital or maybe to tertiary care hospitals like AIIMS in Delhi. जी. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिजीज स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं. जैसे कार्डियक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, आई मीन सिंपल प्रोग्राम है which can be carried out on treadmill, which you can see here in the picture. And on the right side of the picture we are showing the incentive spirometer for ventilatory muscle strengthening program. This can be carried out in COPD patients on various respiratory diseases. And in this picture we had shown that how the postural drainage
can be accentuated. I mean, it's a simple thing which can be taught to any, caregiver, maybe the family members, attendant, or maybe in the hospital to the nurse also, according to the which lobe of lung is involved, and the drainage would be efficiently done, and then things probably would improve. And then routinely we come across with the cancer rehabilitation programs also, like we do receive patients from our IRCH hospital, and all cancer patients, they have got some specific problems. Like in breast cancer patients, they have got lymphedema after mastectomy or maybe after giving them radiation, and they do have metastasis. In case of metastasis, they need various type of spinal support according to the level of lesion, and in case of to improve their cosmesis and to improve their womanhood, then in case of mastectomy, we provide them the breast prosthesis also. And simultaneously, because cancer is such a problem where they come across with so many painful conditions, so in that case we give them adequate therapy and with palliative care program also. We also give certain kind of nerve blocks for this kind of cancer pain and narcotic drugs. सर, जैसे ये अभी आपने बताया कि कैंसर रिहैबिलिटेशन या COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, तो कुछ इसमें ऐसा है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी तक, मतलब इतनी परसेंटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक हो जाएंगे पेशेंट, कुछ ऐसा है इसमें? नहीं मैम, इसमें बेसिकली क्वालिटी केयर हम दे सकते हैं, बिकॉज जनरली अगर ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम COPD में नॉर्मली इनिशियली होता है, कुछ देर चलने के बाद, दूर चलने के बाद उनको होता है, जैसे जैसे डिजीज एडवांस करती है तो फिर उनको इवन बैठी हुई पोजीशन में भी हो सकता है, लेटे हुई पोजीशन में हो सकता है। तो उनका एंड्योरेंस कैसे बढ़ाएं, उनकी जो मसल्स होती हैं इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी मसल्स है, उनको कैसे यूज किया जाए, और डिफरेंट जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है लाइक फ्रॉग ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें आदमी पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि एयर हंगर ज्यादा नहीं होगी और एयर जो मीट आउट है जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी मीट आउट हो जाएगी। सिंपल मैन्यूअर्स हैं वो, दोज कैन बी टॉट एंड दे कैन बी सिम्टम फ्री और दे मे कैन लीड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर, जैसे हमने पहले देखा, आपने डिस्कशन में बताया था कि ये क्यूरेटिव है एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की थी। जैसे हम कुछ डिजीजेस की बात करते हैं उसमें कहते हैं दिस इज क्यूरेबल एंड दिस इज प्रिवेंटेबल, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब क्यूरेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट एंड प्रिवेंटेबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? नहीं, प्रिवेंटेबल का है मतलब कि डिजीज को होने ही ना दिया जाए, तो उसमें जो वैक्सीन हैं उनका यूज किया जाए तो डिजीज आए ही नहीं जी, और डिजीज आ भी गई है तो उसको टाइमली इंटरवेंशन करके क्योर कर दिया जाए। जैसे पोलियो का चल रहा है। हाँ, पोलियो का चल रहा है, और पोलियो में भी जैसे एक्यूट पोलियो का पेशेंट आता है, अगर आप उसमें उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, उसमें कोई इंजेक्शन ना लगाएं, उसको बी कॉम्प्लेक्स ना पिलाएं, मालिश ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं पोलियो। लेकिन एजुकेशन नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं कमजोरी आ गई, इंजेक्शन दो, इसको मालिश कराओ, इसके हाथ पैरों को मूव करो, तो उसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है पोलियो का उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो और नर्व सेल्स जो हैं वो और डैमेज हो जाती हैं, तो उससे फिर पोलियो हमेशा के लिए पेशेंट अफ्लिक्टेड रह जाता है, फिर वो सब एक्यूट और क्रॉनिक फेजेस में चला जाता है, फिर उसका अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। लेकिन एक्यूट फेज में अगर फिजिशियन के पास आ जाए और खाली हॉट फर्मेंटेशन, रेस्ट करें, डार्क काम एंड कूल प्लेस में उसको रख दें बच्चे को, तो आई थिंक उसका प्रोग्रेस नहीं होता है, बच्चा 100% क्योर हो जाता है। जी, मतलब प्रिवेंटिव डिजीज होने से पहले जो हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम मेजर्स लेते हैं, वो प्रिवेंटेबल ट्रीटमेंट के अंडर आता है। जी सर, जैसे अभी तक हमने देखा रोल ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या है, उसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, कहाँ कहाँ हैं इसके सेंटर्स, हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बीच में हमने बात की थी जैसे ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बेसिकली हम शुरू में बात कर रहे थे, ऑर्थोसिस बेसिकली किसी भी वीक पार्ट को सपोर्ट करने के लिए होता है, या कोई पार्ट या लिगामेंट टूट गए हैं, अनस्टेबल हो गया टेम्परेरी या परमानेंटली, उनको स्टेबल करने के लिए देते हैं, या कहीं फंक्शन पुअर हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल पावर, उसको एक्सेंचुएट करने के लिए हम ऑर्थोसिस नॉर्मली देते हैं, या कोई एक्टिविटीज में सप्लीमेंट करना होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसके लिए हम ऑर्थोटिक मैनेजमेंट करते हैं। और दूसरा होता है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस मीन्स रिप्लेसमेंट, जैसे किसी का हाथ कट गया, पाँव कट गया है, तो डिफरेंट लेवल से अगर जो एम्पुटेशंस होती हैं तो डिफरेंट के टाइप के प्रोस्थेसिस यूज करते हैं, और उनके नाम जो जनरली हम यूज करते हैं, जैसे अगर पाँव थाई के साथ कटा हो तो हम कहते हैं अबोव नी, नी से ऊपर है तो अबोव नी,
लेकिन अगर इसकी टर्मिनोलॉजी देखें तो ये ट्रांसफीमोरल बोलेंगे इस एम्पुटेशन को, ठीक है। ऐसे ही अगर बिलो नी है तो बिलो नी एम्पुटेशन बोलेंगे। फिर फुट में है साइम्स एम्पुटेशन है और बॉयक्स एम्पुटेशन है, मिड टार्सल है, इस तरह के एम्पुटेशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनका मैनेजमेंट हर पेशेंट में इंडिविजुअली अलग अलग होता है। सो जैसे हम इस पिक्चर में दिखा रहे हैं रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट्स है। रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट नॉर्मली हम काम लेते हैं जहाँ पे कोई डिजीज एक्टिविटी होती है, लाइक कोई चोट की वजह से हो जिसको हमको पार्ट को रेस्ट करना हो, या डिजीज ऐसी हो मैनिफेस्ट कर रही हो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उस पार्ट को रेस्ट करने के लिए हम रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट्स काम लेते हैं। और ये बहुत इजीली फैब्रिकेट किया जा सकते हैं कहीं पे भी। आजकल तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आ गए हो जिनको आराम से मोल्ड करके और कहीं भी दिए जा सकते हैं, और जैसे जैसे फंक्शन एनहेंस होता जाता है हम उसको बढ़ाते रहते हैं। तो एक बार में जो मटेरियल खरीदा जाता है वही बार बार यूज हो सकता है। देन इस पिक्चर में हम दिखा रहे हैं पॉलीसेंट्रिक हिंज अल्नर डेविएशन स्प्लिंट है, जो कि कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में यूज करते हैं, जो अल्नर डेविएशन हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये सिंपल ऑर्थोटिक्स हैं जो कि जो डिफॉर्मिटी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दो तरह की कॉमनली पाई जाती है, बटनर और स्वान नेक, वो भी इजीली करेक्ट करी जा सकती है। ये 3 पॉइंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे ये जो स्प्लिंट दिखा रहे हैं हम एरोप्लेन स्प्लिंट दिखा रहे हैं, ये बेसिकली जिन लोगों को ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी होती है उसमें दे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कम्बरसम होती है और दिखने में थोड़ी ऑकवर्ड भी लगती है। कुछ एडवांटेज भी होती है तो वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। और इस पिक्चर में हमने बाईं तरफ जो दिखा रहे हैं वो पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जीनू वैरम डिफॉर्मिटी है साथ में, और जो दाहिनी तरफ दिखा रहे हैं वो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करते हैं, इंसोल में एक लेटरल हील एंड वेज सोल वेज लगा देते हैं 3/16 इंचेज का। उससे बेसिकली जो डायनेमिक्स हैं बायोमैकेनिक्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस बिना सर्जरी के भी कंट्रोल हो सकता है। इस पिक्चर में हम यूसीबीएल फुट सपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें सोल की बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे प्लेंटर फेसाइटिस हुआ या पेनफुल हील हुआ, वो चीजें इससे ठीक होती हैं। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जिसमें लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों दिखा जा रहे हैं, ये न्यूमेटिक कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं जो कि कुछ क्लिनिकल कंडीशन जहाँ पैरालिसिस होता है उसमें कोई डिफॉर्मिटी और कंट्रैक्चर्स नहीं हो उसको प्रिवेंट करा जा सकता है। ये प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन मेजर्स हैं। सर जैसे आपने ऑर्थोटिक्स में बताया कि डिफरेंट जैसे कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं या डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, तो हम उन कंडीशंस में कौन कौन से तरह के स्प्लिंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें आपने बताया कि सर जैसे स्प्लिंट्स हमने दे दिए तो मेन उसमें क्वेश्चन जो उठता है वो ये होता है कॉस्मेटिक अपीयरेंस के बारे में। तो उस बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये यूजफुल है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, पर हम पेशेंट को कैसे कन्विंस करें, उसकी काउंसलिंग कैसे करें? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें कॉस्मेसिस तो हमेशा ही अफेक्ट होता है, क्योंकि एक तो नोटिस में आ जाता है किसी को भी, बाईपासर को हमेशा पूछता है बहन जी क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, तो वो कोई भी नहीं चाहता। एक तो वो वाकई बहुत अहम इशू है। लेकिन अब जैसे जैसे न्यूअर ऑर्थोटिक्स आ रहे हैं या ब्रेसेस आ रही हैं, स्प्लिंट्स आ रही हैं, वो बहुत शॉर्ट आ गए हैं, उनको ऐसे ग्लव्स की तरह भी पहना जा सकता है। उसमें दो एडवांटेज होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा नोटिस में नहीं आता और अगली लुक भी नहीं लगता, ऑकवर्ड भी नहीं लगता, कम्बरसम भी नहीं होता है। और दूसरे क्या है कि उसमें फंक्शन रेस्टोरेशन भी रहते हैं। जैसे आज एमपी जॉइंट को हमको करना है तो इसको स्टेबल आराम से कर सकते हैं, बहुत छोटा सा स्प्लिंट आएगा और अननोटिस भी जा सकता है और साथ में सारे मूवमेंट्स भी। क्योंकि कई बार स्प्लिंट देने से, डिफॉर्मिटी करेक्ट करने से या प्रिवेंट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आदमी का साइमल्टेनियसली जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं वो। लेकिन छोटे जो स्प्लिंट्स आ गए हैं उसमें जॉब भी वो कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी, और साथ में इतना नोटिस में भी नहीं आता। और थोड़ा सा उन लोगों को हम बताते हैं कि ये तो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, आपको थोड़ा पहनना ही है, लोगों को लगे तो आप उसको अच्छा लीजिए, उसको क्रिटिसिज्म जैसे मत लीजिए। एंड इट्स फॉर टेम्परेरी यूज ओनली। एग्जैक्टली। सर जैसे हमने डिफरेंट एरियाज की हम बात कर रहे हैं अभी, रिहैबिलिटेशन में जैसे एरियाज होते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के साथ साथ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑडियोलॉजिस्ट, मतलब ऑर्थोटिक्स, ये हमने बात करी। तो जैसे अभी हमने बात करी ऑर्थोटिक्स की, तो आगे और कौन से एरिया हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? Like we will start on physical therapy about different things.
These are superficial heat modalities, like in left hand side there are PEX therapies, and right hand side hot water fomentation, hot PEX, which are used for pain relief. And this is ultrasonic therapy application on left side, and right side there is traction application for correction of flexion deformity of knee joint. And now we will talk about amputee rehabilitation, like prosthesis. So when a patient comes with amputation to us, patient has to be counseled that it is not a destructive surgery. In fact, it is constructive surgery also, because amputation has been done because of certain reasons, either malignancy or deformity or traumatic accident. So patients are in fact prepared pre-operatively by a physiatrist, and after operation he has to be told about certain maneuvers so that contracture doesn't occur, and a good amount of stump we can get at the time of fitting. So in picture, this is a photo of congenital amputation. So we have designed some socket and prosthesis for this little one so that he can walk at early age. These are different Symes amputation, and this is modified Symes prosthesis made up in Indian scenario. This is prosthesis with void amputation, and you can know that it is a cosmetically appealing. If patient wears a pen, nobody will get to know that this person is having any amputation. And this is a patient who has bilateral amputation of lower limb, and he was prescribed stubbies. Stubbies are lower limb prosthesis which are usually prescribed for bilateral transfemoral amputation, because if we prescribe above knee prosthesis, there will be problem of balance. So in that case, balance is not a problem. And another one is the squatting prosthesis, which was designed in our department. In Indian context, we require squatting for defecation and also cross leg sitting. So it was developed with the help of Alimco in our department. And this is electric hand, which is developed at Department of PMR, CMC Vellore, and it is a very cheap hand, approximately 5,000 rupees, and weight is not more, and it is very functional. This prosthesis was developed in our department few years back. You know, for upper limb amputation, prosthesis acceptance is very poor. If you ignore the prosthesis requirement in the early stage, then most likely patient get either adapted to it, or patient doesn't want to wear any prosthesis. But if after operation prosthesis is offered and he can be taught certain maneuvers how to operate the terminal device, his or her acceptance has been improved for upper limb prosthesis. सर जैसे अभी सर ने बात करी कि फिजिकल थेरेपी में कैसे दिया जाता है, जैसे हॉट पैक्स हो गए या कोई भी डिफॉर्मिटी है उसके लिए हम कैसे एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, ट्रैक्शन की बताई थी, और उसके बाद बताया कि एम्प्यूटीज हैं तो उनको किस तरह की डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन और देयर टाइप ऑफ एम्प्यूटेशन तो हम किस तरह के एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सर जैसे फिजिकल थेरेपी में होता है कि एक तो होता है हॉट थेरेपी, एक होता है कोल्ड थेरेपी, तो मतलब उन दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस कंडीशन में हमें किस थेरेपी के लिए रिकमेंड करना चाहिए? आइडियली जो कोल्ड थेरेपी देते हैं इनिशियली सून आफ्टर ट्रॉमा देते हैं, जहाँ पे स्वेलिंग आ रही हो, क्योंकि अगर हम जाते हैं हॉट देंगे उससे परफ्यूजन और बढ़ेगा तो स्वेलिंग मैनी फोल्ड ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उससे पेन और सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट हो जाएंगे और स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर जॉइंट भी
वैनिश हो जाएगी। और कोल्ड बेसिकली देना चाहिए ऐसे पेशेंट्स में, और साथ में जैसे रूमेटॉइड डिजीज होती है, आर्थराइटिस जहाँ पे डिजीज एक्टिव फॉर्म में होती है वहाँ पे भी कोल्ड देना चाहिए। तो एक्यूट कंडीशंस में हम पहले कोल्ड देते हैं, जब क्रॉनिक इन नेचर हो जाती है तो उसमें फिर हॉट थेरेपी देते हैं। और डिपेंड करता है, हॉट थेरेपी के भी कई तरीके हैं, जैसे डॉक्टर अनिल बता रहे थे अभी, वैक्स के रूप में भी है जो सुपरफिशियल है, जॉइंट मोबिलिटी बढ़ाने के लिए देते हैं। और जहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा है, टिश्यू में फैट है, उसमें जो सिलिका के पैड्स आते हैं, हॉट पैक्स आते हैं, वो देते हैं, जिससे मॉइस्ट हीट होती है उसका पेनिट्रेशन ड्राई हीट से ज़्यादा होता है। तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो सिम्टम्स, जो स्पेज़म है, और पेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, सब्सटेंसेज, इंटरल्यूकिन है, पीजी सब्सटेंसेज, दे विल बी वॉश्ड अवे एंड पेशेंट विल इम्प्रूव फास्टर। तो सर जैसे अब उसके बाद में हमने एम्प्यूटीज की बात की थी, उसमें डिफरेंट टाइप के हमने वो एड्स एंड अप्लायंसेस देखे थे। जैसे सर ने एक इलेक्ट्रिक हैंड के बारे में बताया था। तो सर जैसे अगर इलेक्ट्रिक हैंड हम किसी पेशेंट को देते हैं तो उसकी मतलब मूवमेंट, जैसे फिंगर्स की पूरी मूवमेंट्स कंफर्टेबली हो जाती हैं? इसमें बेसिकली जो अभी सीएमसी ने जो अभी पिक्चर देखा था, यहाँ पे सीएमसी वेलोर वालों ने डेवलप किया है, मोटराइज्ड हैंड है। इसमें कुछ रिस्ट के मूवमेंट आ जाते हैं, जिसमें सुपिनेशन, प्रोनेशन आ जाता है, और फिंगर क्लोजर और ओपनिंग आ जाती है उंगलियों की, ये मूवमेंट इसमें होते हैं। और जो थंब का पोजीशन रखते हैं वो अपोनेंट्स में रखते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट में नए लिम्ब आ गए हैं, जैसे बायोनिक लिम्ब आ गए हैं, जिसमें एक एक पर्टिकुलर पिंच ग्रिप, हुक ग्रिप, कोई सा भी ग्रास्प हो, वो सारे मूवमेंट उसमें हो सकते हैं, बट दे आर फेयरली एक्सपेंसिव। आई थिंक दैट कॉस्ट अराउंड 1.8 million Indian rupees. So I think it's beyond the reach of every commoner. But सर जैसे कुछ इंडिविजुअल कंडीशंस होती हैं, मान लीजिए जिनकी जो मोटर फंक्शनिंग होती है वो बहुत वीक होती है, या जैसे जो फाइन मोटर फंक्शंस हैं या ग्रॉस मोटर फंक्शंस हैं वो बहुत वीक हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, मतलब स्पून भी उठाने में उनको प्रॉब्लम होती है, या खाना खाने में कुछ सामान इधर से उधर रखने में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उनको हम बेसिकली एडीएल गैजेट्स देते हैं, जैसे यूनिवर्सल कफ लगा देते हैं, उसमें जैसे फिंगर ग्रास्प नहीं कर पा रही, बटनिंग अनबटनिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ अडेप्टिव गैजेट्स आते हैं, उनका यूज करके, या अडेप्टिव क्लोथ्स बता देते हैं, जैसे वेलक्रो, बटनिंग अनबटनिंग इज अ फाइन मूवमेंट बेसिकली, तो वेलक्रो स्टेप वाले, या इन प्लेस ऑफ नाड़ा इलास्टिक हो, सो दे कैन इजीली यूज देम। और आउटरीच करने के लिए रीचर्स होते हैं, ऊपर ओवरहेड एक्टिविटी करनी हो या सॉक्स पहननी हो, शू उतारना हो, तो रीचर्स होते हैं, उनके जरिए, वो असिस्टिव गैजेट्स के जरिए ये सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन साथ में इन विस आपको फिजिकल थेरेपी तो करनी पड़ेगी, जो मसल्स वीक हो गए हैं, और कोऑर्डिनेटेड जो हैंड मोटर मूवमेंट्स हैं उनको एक्सेंचुएट करने के लिए काफी थेरेपेटिक मॉड्यूल्स हैं, वो साथ में करते रहने पड़ेंगे एडेप्टिव गैजेट्स के साथ यूज करते हुए। तो मतलब बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस भी होते हैं जो हमें प्रोवाइड करने जी। Like assisted devices, like here we had shown in this picture, you can see the walker and the crutches, both axillary and the elbow crutches. They help in the mobility. And then the sexual rehabilitation is very important component of physical medicine rehabilitation. And we commonly see the erectile dysfunctions amongst the spinal cord injury patients, and that can be taken care of with the use of vacuum pump. Here also they're shown the same thing in this picture. And if a male does not able to ejaculate, then we use the electroejaculator so that artificial insemination can be done. And the ultimately aim is that disabled should have a right to have a baby, healthy baby. Then other ambulatory aids are like available powered wheelchair onto your left, and the right it's a manual wheelchair. And in this picture we had shown that this patient was required. Sir, there is a question from our viewer. Yes, can we have the question please? There is a question from our viewer. Can we have the question please? सर लगता है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है. We will soon reconnect it. In this picture we had shown the person with a special modification in the wheelchair, like because he was having the amputation also, so he was not able to propel the wheelchair, so we given extra knob to accentuate or to extend his wheelchair mobility.
And now And these are neural prostheses. These are basically developed in USA. Unfortunately, they are very costly, not for Indian setting. Small electrodes which are surgically attached to the muscles that control the heart. Externally, the patient wears a shoulder position sensor attached to an external control unit and a transmitting ball that is positioned over the implanted stimulator. The patient activates the device by moving the shoulder position sensor, which sends a signal to the controller. It relays the impulse to the transmitting coil, which sends the signal across the patient's skin to the internal stimulator. The stimulator then sends electrical impulses through the lead to the electrode, which stimulate the muscles of the hand, causing them to contract, and providing the person with a functional strong grip. सर जैसे ये वीडियो जो हमने पहले वाली वीडियो दिखाई थी, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन बताएंगे कि ये वीडियो किस रिगार्ड में थी और क्या बताया गया है इसके अंदर? ये बेसिकली न्यूरल प्रोस्थेसिस हैं जो आजकल बहुत अब्रॉड में काफी यूज हो रहे हैं। जैसे कहीं पैरालिसिस हो गया, एक पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, जो हेल्दी पार्ट होते हैं वहां से सिग्नल पिकअप होते हैं, वैसे ही मूवमेंट किए जाते हैं, पिकअप होते हैं, सिग्नल जनरेट होके और ये बेसिकली अंदर फिट किए जाते हैं, उसके द्वारा वो जाके दूसरे जो अनहेल्दी लिम्ब है या अफेक्टेड लिम्ब है उसमें वो एक्टिविटी जनरेट करते हैं और जो जैसा मूवमेंट चाहिए वैसा मूवमेंट जनरेट होता है बेसिकली। तो इसको न्यूरल, क्योंकि ये मिमिक करता है जो अपनी नॉर्मल नर्व्स होती हैं, इसलिए इसका नाम न्यूरल प्रोस्थेसिस दिया है। इसके काफी वाइडर एप्लीकेशंस हैं, दे आर वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी यूजफुल। जैसे ब्लैडर मैनेजमेंट में भी इसका यूज करते हैं। एक वीडियो है, हम उसको भी आपको दिखाना चाहते हैं। The neural control Voltaire bladder system electrically stimulates the bladder, urethral sphincter, and valve. It consists of a surgically placed abdominal pacemaker-type implant called an internal receiver stimulator. Electrode leads run under the skin and connect to electrodes that are attached to the spinal nerve. Externally, there is a transmitter that's connected to a handheld control antenna, which is placed over the area of the internal receiver stimulator. The patient can switch on the external controller and activate the transmitter antenna. It sends an electrical impulse through the skin to the internal stimulator and electrodes. This generates nerve impulses that cause the muscles of the bladder to contract. The external controller has the ability to transmit the electrical impulse so that the muscles of the sphincter relax and the muscles of the bladder continue to contract, thereby allowing the bladder or bowel to empty. सर जैसे ये हमने वीडियोस देखी जिसमें मतलब काफी इंफॉर्मेशन थी दोनों वीडियोस में कि कैसे हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं, नर्व स्टिमुलेशन। ये इन वीडियोस के जरिए आई होप व्यूअर्स ने काफी इंफॉर्मेशन ली होगी जो हमारे एक्सपर्ट ने दी। बाकी का सेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास
उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. वेलकम बैक टू आवर सेशन। हमने ब्रेक में जाने से पहले देखे थे कि रिहैबिलिटेशन के रोल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं और वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक इंडिविजुअल के रिहैबिलिटेशन में। तो आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन कौन से इसके रोल्स हैं इम्पोर्टेंट जो इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाने में इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे स्पास्टिसिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड इट्स फॉर बोथ, फॉर पेशेंट एज वेल एज फॉर अ डॉक्टर, ट्रीटिंग फिजिशियन। एंड आजकल इतना चैलेंजिंग प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अब कुछ नई दवाएं आ गई हैं, बहुत यूजफुल हैं, बट उनका प्रॉब्लम है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि आम आदमी की रीच से बाहर है। लेकिन जो भी अगर ग्रुप में लगा रहे हैं या जहाँ पे सेंटर्स में ये प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये दवा सस्ता पड़ रहा है। हम लोगों ने जो बोटॉक्स क्लिनिक चलाया है उसमें भी दवा सस्ती हो रही है, लोग काफी इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ये यूजफुल उन्हीं लोगों में होती है जिनकी 1 या 2 मसल्स ग्रुप ही हैं जो अफेक्टेड हैं, और इसको बार बार नहीं दे सकते, इसका ये डिसएडवांटेज है। तो ये एडजॉइंट थेरेपी कहते हैं इसको, जिसके बाद फिजिकल थेरेपी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इसका पेशेंट बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा और फिर उसको उतना ही कॉस्ट अटेंडेंस को बेयर करना पड़ेगा।
जैसे अब हम एक आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बिफोर इंजेक्शन पिक्चर है, जिसमें बच्चा अपनी पूरी उंगलियों को खोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन जो बोटॉक्स लगाने के बाद देखा है आप 2 days आफ्टर द बोटॉक्स द चाइल्ड इज एबल टू एक्सटेंड हिज फिंगर्स। तो जो फिंगर क्लोजर था वो अब काफी खुल गया है, लेकिन अगर इसको और बढ़ाना देना है तो फिजिकल थेरेपी एडिक्वेट चाहिए इसके लिए। अब हम कुछ आपको गैजेट दिखाएंगे जो हेल्प करते हैं रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, जिनको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, जैसे ग्रूमिंग, ईटिंग, बेदिंग, mobilization and other household tasks. Like in the left picture we have shown the feeding device, where the limitation of movement of the elbow. So with the help of that feeding device one can reach to the mouth. On the other side we have shown the gazette for buttoning and unbuttoning. And in this picture we have shown page turner and with so many environmental control devices. This is very useful in patients who have got high tetraplegia, spinal cord injury, or maybe some muscular dystrophies where they don't have the head control and they are not able to speak out. So those kind of things could be managed very easily with these kind of environmental control devices. Then in our department we have got so many gadgets to use for, like the person who have got the instability, like during the walk, or maybe there is a vertigo that tends to fall either way. So those things can be evaluated by using this balance master, which is very costly equipment though, but simultaneously with this equipment, after evaluation we can initiate the therapy also, and the results we found are very encouraging. And in this picture also we had shown different type of control devices which can be either operated by puff or sip, or maybe by nodding of the head, etc. And then other component we were talking about the psychosocial and the vocational counseling. So in this picture, if you really do a good job by the help of vocational counselors and adequate evaluation of psychosocial aspect, then probably you can see like this person sitting in the wheelchair is back to the walk again, so they can be rehabilitated completely. Then PMR specialty also play major role in the sports medicine. And in this we have shown the isokinetic system, which helps to evaluate the torque value in different group of muscles, including the trunk, upper extremity and lower extremity. And once they are evaluated, then if required to be trained, they can be trained subsequently on this equipment. Then this is the one area, key area, which also be taken care of by PMR specialists nowadays, disaster management. Because during the disaster, apart from the preparedness, we need to know that how to evacuate the patient from the, either they are under the debris or under the some wooden log. So how they need to be taken out and how they need to be transferred from the site of injury to the hospital where services has to be given. Because what happens, most of the spinal cord injury patients at the time of when taken out from the debris, they are absolutely normal, but the person who is taking them out and shifting them to the hospital, they are not aware that what could be the consequences, and there is not adequate medical care at that particular time. So spinal board or log should be used, so that until we clear them that there is no spinal injury, then only they should be allowed to sit or walk. Before that they should be lied down until they reach it to the hospital, and on the subsequently on the X-ray it should be predicted out whether injury is there or not. So that is also important role of PMR specialist, from transferring from the site to the hospital. सर जैसे आपने बताया कि डिफरेंट एरियाज कैसे इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, और अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट फॉर द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इंडिविजुअल, बी इन एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिकल और सोशल और फिजिकल और एजुकेशनल, मतलब हर तरीके से हर एस्पेक्ट से रिहैबिलिटेशन जरूर होना चाहिए इंडिविजुअल का. तो सर देयर मस्ट बी सम मतलब सक्सेसफुल स्टोरीज बिहाइंड दैट, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग एक वीडियो दिखाएंगे. तो जैसे हमारे एक्सपर्ट एक वीडियो दिखाएंगे जिसके जरिए हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन से वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और वो एक कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी का एक
यूजफुल पार्ट हो सकते हैं और किस तरीके से अपने इंडिपेंडेंसी, अपनी क्वालिटीज और स्ट्रेंथ्स के साथ अपनी सोसाइटी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आइए हम वीडियो देखते हैं। Sorry, this is not video, this is a PowerPoint presentation. In fact, this publication was published in Indian Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, October 2006, and it was multiple disabilities and challenges in rehabilitation. In fact, this patient was a paraplegic patient who developed lots of injury after falling from the train. He developed fracture L3. Because of that, he developed paraplegia with neurogenic bowel and bladder, and he developed left dysarticulation as shown in this picture. Moreover, he developed 4-foot amputation left side. So in this patient we faced a different kind of problems. Patient was schizophrenic, which was diagnosed later on. Nobody recognized that fact, starting from the Patna Medical College to AIIMS till the time patient is admitted for us. After 1 week, because of some psychotic event, we could be able to recognize that. And the greatest problem was the wheelchair mobility. This patient was unable to move with the amputated hand. Of course, there are wheelchairs which can be driven by single-handed, but they are very costly, like 15,000 or 16,000, which are not amenable to Indian patients. So we have designed this wheelchair by putting extra knob at left side, so that he can propel by either with prosthetic hand or by stump. The another question was in this patient was how will patient will hold the crutches. Neither he can hold by axillary or not elbow crutches. So we designed a trough for the left hand, and after fixing the trough at axillary crutches, patient was able to walk. And as patient was having urinary incontinence, and he was trained for clean intermittent catheterization with the help of one strap, so that he can maintain, he can do CIC with single hand. So it was also very difficult task, but after sitting with my professor, I got to know this technique. तो सर, जैसे इसमें आपने एक पेशेंट की स्टोरी बताई कि किस तरीके से उसको जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे मैनेज किया, उसको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया. मतलब दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. सर, जैसे आपने आज के सेशन में हमें बताया कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का क्या क्या रोल है, तो आप फाइनली कुछ मतलब एडवाइस या कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए उस बारे में? नहीं, इम्पोर्टेंट इशू है कि जहाँ कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने हाथ झाड़ लेता है, वहाँ से रिहेबिलिटेशन फिजिशियन का काम शुरू होता है, और वही लोग वो जिजेंटिक टास्क होती है उसको टेक केयर करते हैं, और उसको जो भी पोटेंशियल उस पेशेंट के इंडिविजुअल के अंदर होते हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कौन कौन से थेरेपी के जरिए या कोई गजेट्स के जरिए या कोई एड्स के जरिए उसको मैक्सिमाइज करके उसके रेजिडुअल पोटेंशियल को यूज करके इंडिपेंडेंट बनाना ही एक फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन का बहुत मेजर रोल है, और जो हर डोमेन को कवर करता है, वेदर इट्स मेडिकल, सोशल, economical and psychological. So it is basically rehab is an holistic approach, and at the same time it's a teamwork, and it has got plenty of team members, and they work like hand in glove to achieve the goal in a particular set goal in a particular individual. And at the same time we do the conferences amongst our colleagues, and we ought to know like why it's not happened, what is the thing which preventing them not to achieve that kind of task or goal. So time to time we do that kind of conferencing, and
we identify the cause, we motivate the patient, and if required the intervention from other professionals, then we do that also to achieve the goal, set goal in particular individual or patient. तो सर जैसे आपने सर देयर इज अ फोन कॉल फ्रॉम आवर व्यूअर. यस, कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? There is a question from our viewer. Can we have the question, please? Sir, I think there isn't. Can I have the question, please? I think there is some technical problem, so that the question is not reached to us. तो सर जैसे आपने बताया कि हमें मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सर मतलब हम पेरेंट्स को कैसे बताएं कि व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस दैट वी शुड टेल टू द पेरेंट्स कि वो ध्यान रखें इस बात का? गाइडलाइंस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं, पर्टिकुलर डिजीज एंटाइटी में डिफरेंट होती हैं. लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं और फर्दर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी पे करते हैं. वो बहुत जरूरी है. और साथ में जो आज हमारी गवर्नमेंट ने उनको कितनी फैसिलिटीज दी हैं उसके बारे में भी हम अवेयर कराते हैं और उनके क्या राइट्स हैं इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी के, वो भी हम लोग उनको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम. लेकिन अभी जो हम कॉमनली देखते हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय 1/3 ऑलमोस्ट by simply way of doing lifestyle modification, which includes their physical activity, dietary habits, and how to reduce down the stress, which may be either work stress or maybe other type of stress, how they can cope up with them and how they can deal with them. If we learn them all those techniques, probably we can reduce down substantial amount of disease. Sir, there is a phone call from our viewer. Can I have the question, please? There is a question from our viewer. Can we have the question, please? Hello. हाँ जी भावना जी कहिए. Yes, this is the question from Dr. Yadav. Yes, what is the question? I request you to repeat the question. I request Bhavna ji to repeat the question. Sir, I think technical problem की वजह से, but जितना पता चला भावना जी पूछना चाहती हैं कि जैसे हमने बोtulinum टॉक्सिसिटी की बात की थी तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब कुछ नेगेटिविटी साइड भी होती है? नहीं, साइड इफेक्ट उसके यही होते हैं कि अगर हम बार बार दें तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और अगर प्रॉपर डोज कैलकुलेट ना करें तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अनफोर्सीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, ऐसी देखी नहीं गई है. और ऑफ कोर्स कॉस्ट इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज अफोर्डेबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. दैट इज द ओनली. एंड थर्ड negative thing is with this botulinum toxin is the effect doesn't last for longer. So it isn't just should be used as an adjunct therapy, and simultaneously we should emphasize more on the physical therapy aspect to have the better outcome and better results. So that's the thing which I would like to convey to her. तो जैसे हमारे व्यूअर को आई होप आंसर पता चल गया होगा, जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उस टॉक्सिसिटी के. तो सर जैसे मतलब हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन में. जैसे हमारा जो मेन एम होता है रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का, वो ओवरऑल प्रोवाइड करना होता है इंडिपेंडेंसी to the maximum capacity of an individual, be it in terms of physical, medical, social, economical, communication, in every aspect. और सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट, मतलब एवरी एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, पर मेनली अगर हम देखें जैसे सोशल एस्पेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हम डिसेबल्ड हैं, और अगर फिजिकल है तो और भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कि बाहर जाएंगे कि लोगों का एटीट्यूड कैसा होगा. तो उस टर्म्स में हम काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं?
बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे डॉक्टर अनिल ने कुछ देर पहले बताया कि पहले डिनाइल होता है कोई भी डिसेबिलिटी को, फिर एंगर होता है, फिर रिजेक्शन होता है, फिर फाइनली एक्सेप्टेंस होता है बेसिकली। तो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तो वो लोग फिर हम लोगों के पास आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि यू आर नॉट डिसेबल्ड। और विकलांग जो जनरली हम लोग सोचते हैं हमारे से विकलांग, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें हिंदी में, वी फॉर विशिष्ट मीन्स डिफरेंटली, कलांग कलाओं युक्त यंग होते हैं, अंग होते हैं उनके, तो वो किसी मायने में किसी एबल बॉडीड से कम नहीं है। उनमें जो हिडन चीज है उसको एक्सप्लोर करें, आप लोगों से फेस करें उसको, ऐसा कोई बात नहीं है, लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनको हमको चाहिए कि मोर इकोनॉमिकल वाइबल सॉल्यूशंस कैसे दें, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटा पे अगर हम उनको साथ खड़ा करेंगे तो भी शायद वो इक्वलिटी अपने आप में फील करेंगे, पब्लिक में भी एक्सेप्टेंस होगी। और दूसरा हम उनको बताते हैं तुम किसी मायने में कम नहीं हो। जैसे जनरली देखा हुआ है कोई डिसेबल्ड होता है, किसी ऑफिसर ने डांट दिया, हमारे पास आते हैं कि सर हमको पहले भगवान ने मारा, आज हमको आप भी ऐसा कह रहे हैं। वो हम उनको बताते हैं कभी नेवर एवर फील लो फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम एबल बॉडीड पर्सन, यू आर इक्वली गुड, योर ब्रेन इज वर्किंग, यू कैन डू वंडर्स, एंड अदर कलीग्स ऑफ योर्स amongst you, they are also doing wonders. So how can you motivate them positively, you know? With that probably they understand the situation and they grew in their own way. सर जैसे as we are to the near of the closing of our session, तो आप जैसे इस फील्ड में काफ़ी years से हैं, आपको you must be having a lot of experiences of these such cases. तो आप उनसे मतलब कुछ ऐसा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी हम लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं उनसे कहते हैं कि अपने अंदर जो चीजें हैं उनको खुल के कहें हमसे, और मैं अपने भी जो जूनियर एजेंट्स उनको बताता हूँ उनको धैर्य से सुने, क्योंकि कोई भी चीजें ऐसी नहीं होती हमने डिक्टेट कर दी तो until unless we listen them properly, patiently, then probably we are not able to understand them. कोई भी चीज उनके ऊपर थोपेंगे they are not going to accept that. जैसे कुछ लोग होते हैं पैर में कैलिपर हम लिख देते हैं, क्योंकि कैलिपर पहनना मुश्किल है, हैवी होता है, यूज नहीं करेंगे, या वेदर टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं, यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ले जाएंगे घर में टांग देंगे। तो उससे पहले नीड बेस्ड पूछना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, उसी जरूरत को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो पेशेंट को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी देना चाहिए जितना एक डॉक्टर को। उसके साथ ही फिर बैठ के ये डिस्कशन करके ही उसको हम बताना चाहते हैं, न कि उसके ऊपर डायरेक्ट थोप दें कि तुम्हारे ऊपर ये थेरेपी काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है जो हम ऐसे लोगों से करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों में छुपी हुई पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ उसको ऊपर लाने की जरूरत है। अगर हम उसको प्रॉपर यूज करें तो दे कैन रियली डू वंडर्स, दे कैन रियली डू वंडर्स। सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही जैसे बताया, रिहैबिलिटेशन मीन्स हाउ कैन यू एक्सप्लोर द पोटेंशियल्स, जो बचा हुआ पोटेंशियल्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे किया जा सके पेशेंट के हर क्षेत्र के लिए, वेदर इट इज वोकेशनल, साइकोसोशल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिकल। सो रिहैबिलिटेशन मीन्स ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। तो जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, आज का जो हमारा मेन सेशन था, रोल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, कि रिहैबिलिटेशन का हमारा रोल क्या है, कितने डिफरेंट एरियाज होते हैं, कैसे उनको हम इंडिविजुअल्स को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, टीम मेंबर्स कौन से होते हैं, हम टीम अप्रोच के साथ कैसे पेशेंट्स के साथ काम कर सकते हैं, और डिफरेंट थेरेपीज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके बताए, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और एम्प्यूटेशन, उसमें हम किस तरीके से ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं और इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हम इसमें ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना होगा इंडिविजुअल, पर हम इसमें कि उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बूस्टअप कर सकते हैं, कि ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेबिलिटीज हैं, जितनी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको हम यूज करते हुए उसको इंडिपेंडेंट बना दें। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने दी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। That was all about the session of physical medicine and rehabilitation. This is time for the closing of our session. Thank you so much.
Thank you.